کیا ابن سیاد ہی دجال تھا؟ اور کیا ہماری جدید ٹیکنالوجی دجال کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا دجال ملٹی ڈائمینشنز میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ دجال ہے کیا اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں پوری زندگی میں جس میں انہوں نے مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ یہ اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا ٹرائل، اتنا بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے نبی نے کوئی نماز زندگی میں ایسی نہیں پڑھی جس میں انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو کہ اے اللہ مجھے مسیح دجال کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، اور واقعی دجال کا لفظ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ یہ فتنہ ہے، ایک ٹرائل ہے، تو اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن قرآن میں اس کے اشارات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد بیٹھ گیا تھا، اور وہ جسد کو دیکھ کے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اور یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد میرے جیسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ یہ دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ جو جسد بیٹھا تھا وہاں وہ ان جیسی حکومت کرنا چاہ رہا تھا یا کر رہا تھا، اور وہ دجال تھا۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ تدرک الحاکم کی ایک حدیث ہے 8316، اس کا نمبر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ہم ضرور انہیں ذائقہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ ہو سکتا ہے یہ میری طرف پلٹ آئیں، اور فرمایا کہ ایک تو اس سے مراد فتح روم ہے، جنگ ہے، قیامت کے نزدیک آنے والا دھوئے کا عذاب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہا کہ اس سے مراد دجال ہے۔ تو یہ دو ٹریسز ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں دجال کے بارے میں۔ اب دجال ہے کیا، اس کا وجود کیا ہے، یہ بڑا ایک مسٹیریس کوسچن ہے، اور اس پر بڑی ڈبیٹ ہوئی دنیا میں اور آج بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کا نام ہے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ ایک شخصیت ہے۔ اب ہم اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ ابن سیاد ایک بچہ تھا جو کسی یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا مدینہ میں۔ وہ جب پیدا ہوا پھر بڑا ہوا اور اپنی جوانی کی عمر کو پہنچنے کے نزدیک تھا تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی کوئی شکل و صورت اس طرح کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بتائی ہوئی تھیں کہ اس کے والدین 30 سال بے اولاد رہیں گے، یہاں تک بتایا کہ اس کی ماں جب حاملہ ہوگی تو اس کے حمل کا دورانیہ 9 مہینے کی بجائے 11-12 ماہ ہو جائے گا، اور پھر یہاں تک بتایا کہ اس کی ماں دراز قد عورت ہوگی، اس کی چھاتیوں کا سائز بڑا ہوگا اور اس کا باپ دبلا پتلا کمزور سا ہوگا۔ اچھا، وہ ساری نشانیاں جو تھیں، ایک فیملی تھی مدینہ میں، ان کے ہاں 30 سال اولاد نہ ہوئی، اس کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ بھی اس طرح 12 ماہ حمل کے بعد پیدا ہوا۔ اس کی ماں کی نشانیاں بھی اسی طرح کی تھی، باپ کی بھی اسی طرح کی تھی۔ اب بچہ جو پیدا ہوا اس کی شکل و صورت بھی اسی طرح کی تھی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب و غریب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح بچہ ہوا ہے جو جوان ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے ملاقات کے 2 واقعات ملتے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر جنہوں نے روایت کی ہے یہ حدیث، وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے محلے میں گئے۔ اس وقت وہ جوان ہو رہا تھا، بھی لڑکا تھا اور لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کندھے سے پکڑا اور کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ
अलैहि वालेहि वसल्लम से पूछ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने कहा, मैं तो ईमान लाया हूँ अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है। उसने कहा, मुझे सच्चा और झूठा मिक्स करके नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने कहा कि तेरा मामला तेरे ऊपर उलझा दिया गया, तू गर्क हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कोई बात सोची है दिल में, तुम बताओ मैंने क्या सोची है। उसने कहा, जी आपने दुख किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैंने वाकई सूरह दुखान की आयत सोची थी। और उसने दुख किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झटका दिया और उसे कहा कि तू गारत हो, तू बर्बाद कर दिया जाए। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उसको कत्ल करने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा अजीब जुमला फरमाया कि उमर, अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो तुम इसको नाहक कत्ल करोगे। दज्जाल सिर्फ नबी के हाथों कत्ल होगा, अदरवाइज दज्जाल को दुनिया की ना कोई गोली मार सकेगी, ना कोई बम मार सकेगा, ना खंजर ना तलवार। दूसरा वाकया ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुफिया तौर पर उसको जाकर चेक करते हैं कि ये क्या करता है और क्या बोलता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबी बिन काब के साथ और कुछ और सहाबी भी थे, उनके साथ मिलकर खजूरों के एक बाग में गए जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और छुप के दरख्तों के पीछे से उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अब वो एक चादर लेके लेटा हुआ था और उसके अंदर से उसकी आवाजें आ रही थी। लेकिन हुआ यूं कि जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब पहुँचे तो उसकी माँ ने उसको आवाज दे दी कि साफ मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उठ के बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश आज इसकी माँ अगर इसको खबरदार ना करती तो मैं अंदाजा कर लेता कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि वो एक पर्सनैलिटी थी। फिर इसमें ये वाकयात मिलते हैं कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद महफिल में बैठे होते हैं और कसम खाते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है। अब सहाबी दूसरे कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जाबिर, तुम कसम खा रहे हो, ख्याल करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर बिन खत्ताब को कसम खाते हुए यही जुमला कहते सुना था कि अल्लाह की कसम यही दज्जाल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद या इसकी नफी नहीं फरमाई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो जाता है और ये बंदा जवान होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा होते हैं उसके और ये इस्लाम कबूल कर लेता है। अब फिर इसके दो वाकयात मिलते हैं। हजरत अबू सईद खिजरी बहुत बड़े सहाबी हैं और चौथे नंबर पर हैं हदीस रिवायत करने में। तो हजरत अबू सईद खिजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हज के सफर में था और इस सफर में इब्ने सयाद भी मेरे साथ चल पड़ा। अब कहते हैं कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि ये दज्जाल है। तो मैं बड़ा खौफजदा था उससे। एक जगह हमने पड़ाव किया तो ये गया, हदीस का खुलासा बयान करने लगी हूँ अब मैं कि ये गया, इसने बकरी का दूध निकाला। जब आप दूध निकालते हैं जानवर से तो गर्म होता है ना हल्का हल्का। तो कहते हैं कि वो गर्म दूध उसके ऊपर झाग आई हुई थी, वो प्याले में लेके मेरे पास आया और मैं उसके हाथों से कोई चीज पीना नहीं चाहता था। तो कहते हैं मैंने बहाना लगाया कि यार गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने गर्म दूध नहीं पीना। तो उसने कहा कि अबू सईद खिजरी, तुम जानते हो, मैं समझता हूँ कि तुम क्यों मेरे हाथ से दूध नहीं पीना चाहते। यार देखो, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, खामोखा प्रोपेगेंडा करते हैं। तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो, तुम्हें तो सारी हदीसों का पता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। तो देखो, मैं तो मदीने में रहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मक्का में भी दाखिल नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारे साथ मक्का हज करने जा रहा हूँ। तो लोग खामोखा ऐसे ही मुझे बदनाम करते हैं। अबू सईद खिजरी कहते हैं कि उसकी ये बातें सुन के ना मेरा दिल नरम हुआ कि वाकई यार लोग इसको बदनाम करते हैं। तो साथ ही वो कहता है कि अबू सईद, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि दज्जाल कौन है, इस वक्त कहाँ है और उसका माँ बाप कौन है। तो अबू सईद खिजरी कहते हैं कि मैंने अपना सामान उठाया, मैंने कहा लानत तेरे पे, मैं चलता बना और मैं उससे अलहदा हो गया। दूसरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये मिलता है, ये भी तमाम अहादीसों की किताबों में रिपोर्ट हुआ है। इन तमाम अहादीस के नंबर जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मुझे एक दफा ये मदीना की एक गली में मिल गया और इसकी जो आंख थी वो अजीब तरह से फूली हुई थी, अंगूर की तरह, जिस तरह दज्जाल की आंख
आंख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि खुली हुई होगी। तो मैंने उसको कहा तेरी आंख को क्या हुआ है? उसने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि आंख तेरे सर पे लगी हुई है, तुझे नहीं पता? कहते हैं मेरी उसके साथ तलख कलामी हो गई तो मुझे कोई पता नहीं रहा कि मैंने क्या किया है। मेरे साथी मुझे बताते हैं कि मैंने उसे डंडे से मारा, इतना मारा कि मेरा डंडा टूट गया, मेरे होशो हवास नहीं रहे, और जब मारता जा रहा था तो उसका साइज फूलता जा रहा था, इतना फूल गया कि वो पूरी गली बंद हो गई, उसका जिस्म इतना बढ़ गया। अब ये वाकया फौरी तौर पर मदीना में मशहूर हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको मार के तो अपनी बहन के घर आए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा उनकी बहन थी सकी, उनके घर। तो उनके पास गए तो उम्मे हफ्सा तक ये बात पहुंच चुकी थी कि इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की लड़ाई हुई है इब्ने सयाद के साथ, और इब्ने सयाद फूल गया, इतना फूल गया कि गली बंद हो गई। तो उम्मे हफ्सा ने फिर डांटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कि तुमने क्यों उसको मुंह लगाया? तुम्हें नहीं पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल गुस्से में आके अपना ज़हूर कर देगा। अब ये वाकया भी मिलता है इब्ने सयाद के बारे में। एक वाकया और मैंने पढ़ा था कि अस्फहान एक इलाका है ईरान का, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल का सबसे पहले साथ देंगे। अस्फहान को जब फतह किया गया तो फतह करने वाले 2 सहाबी थे, अबू मूसा अशरी और सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा कि जब हमने फतह किया तो हमने देखा कि यहूदियों ने एक बंदे को सर पे उठाया हुआ है और वो जश्न मना रहे हैं। जब हमने गौर से देखा तो वो इब्ने सयाद था, जबकि इब्ने सयाद जो है वो मदीना से गायब हो चुका था। तो वो वहाँ उसको यहूदी अपने कंधों पे उठा के तो जश्न मना रहे थे। अब ये भी एक अजीब और गरीब किस्म का वाकया है जो जहन में आता है। ये तो हो गया इब्ने सयाद के बारे में और दज्जाल के बारे में। अब एक वाकया है जो सैयदना तमीम दारी का है, जिसमें उन्होंने एक आइलैंड के ऊपर दज्जाल को देखा। अब जरा दज्जाल की प्रेजेंस पे आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले दज्जाल से डराते हैं और वहाँ से दज्जाल का सीक्वेंस शुरू होता है। इसका मतलब है कि कहीं वहाँ से इसका आगाज हो रहा है। फिर दज्जाल जो है वो अपनी रोनमाई करता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जसद की सूरत में। फिर दज्जाल तमीम दारी को मिलता है एक आइलैंड की सूरत में। फिर दज्जाल के बारे में सहाबा कस्में खाते हैं कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है। इसका मतलब यह है कि दज्जाल की मल्टी डायमेंशंस हैं। ये कोई अल्लाह की अजीब और गरीब किस्म की मखलूक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दौर का इसका बताया कि नजदीक जब आएगा तो वहाँ सिर्फ इतना बताया कि वो मशरिक से निकलेगा। अब वो पैदा हो के जवान होगा, दोबारा से पहले से पैदा हो चुका है, वल्लाहु आलम ये क्या होगा। लेकिन इसके ट्रेसेस जो हमें मिलते हैं वो पूरी तालीम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचा दी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की सारी एडवांसमेंट जो है ये उस पर कंट्रोल हासिल करेगा। ये सारा कुछ जो है वो पीछे बैठ के कहीं ना कहीं वो ऑपरेट कर भी रहा है। अब वो जब आएगा वो क्या करेगा? देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तो उसकी मुठभेड़ होनी है आखिरी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ही ईसा अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होंगे वो कहेंगे कि मैं इसकी खबर लेता हूँ। इसकी तरफ देखेंगे और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांसों से पिघलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक क्रिएचर है जो नबी के सांस से पिघलती है, बस इसके अलावा इस पर कुछ असर नहीं करता। लेकिन वो करेगा क्या और उससे बचना कैसे है? एक तो इसके बारे में दुआ है जो हमने हर नमाज के बाद पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि मसीह दज्जाल। दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ बचाएगी। वो क्या करेगा? वो सबसे पहले दुनिया की हुक्मरानी ग्रैब करेगा। ये जितनी सुपर पावर्स हैं ये इनको मान लेंगी। क्यों मान लेंगी? क्योंकि यहूदी कहते हैं कि हमारा मसीह आने वाला है, और जब वो मसीह होने का दावा करेगा तो ईसाई भी उसको मान लेंगे। वो कहेंगे कि हमारे जीसस वापिस आ गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक बस्ती में जाएगा। अब याद रखें कि वो बस्ती मुसलमानों की बस्ती में होगी, क्योंकि सारा यूरोप उसको तस्लीम कर चुका होगा, मान चुका होगा। वो एक शहर में आएगा और कहेगा कि मुझे रब मानो। वो लोग उसको रब मान लेंगे तो वो जमीन को हुक्म देगा कि पैदावार उगाओ। जमीन अपने खजाने बाहर निकाल देगी और उनके जानवर 10-10 गुना ज्यादा दूध देना शुरू हो जाएंगे और वहाँ खुशहाली फैल जाएगी। लोग अमीर हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, लेकिन फिर वो जहन्नुम में जाएंगे। फिर वो एक शहर में जाएगा, उनको कहेगा मुझे अपना रब मानो। लोग कहेंगे कि ना, हम तो नहीं मानते।
تو दज्जाल है, तो वो जमीन को हुक्म देगा कि पैदावार रोक दो, आसमान को कहेगा बारिश रोक दो, वहाँ कहत फैल जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, लेकिन वो लोग जाएंगे जन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके एक हाथ में आग होगी और एक में दरिया। ये एक सिंबॉलिक है या क्या है ये अल्लाह ही जानते हैं। तो अगर तुम उसको पाओ तो उसकी आग में कूद जाना तो तुम सीधा जन्नत में निकलोगी, अगर तुम उसकी दरिया में पानी में कूद गए तो सीधा आग में निकलोगे। उसके बाद सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लोग उसे पाएं तो क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें कहना कि वो भाग जाएं, पहाड़ों पर चढ़ जाएं, उसके करीब भी न जाएं। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो बात ना माने तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें कहना अपने घरों में बंद हो जाएं। या रसूलल्लाह अगर ये भी न माने तो उन्हें कहना कि अपने घरों के किसी एक कमरे में बंद हो जाएं। यानी कहने का मतलब ये था कि उसके करीब भी नहीं जाना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान होगा, मोमिन होगा, उसे अपने ईमान पे इतना पुख्ता यकीन होगा, कहेगा यार मैं इसकी खबर लेता हूँ, वो उसके साथ जाके आर्ग्यूमेंट करेगा और उसको मान लेगा, तो तुम उसकी करीब भी न जाना। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों वो मारा जाएगा, यहूदियों को कत्ले आम होगा, और इस तरह का कत्ले आम होगा यहूदियों का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्थर और दरख्त भी बोलेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा है, तो उसको मुसलमान आकर कत्ल कर देंगे सवाए एक दरख्त के, और उसका नाम है बरकत का दरख्त। वो नहीं बोलेगा। और इसराइल में अब तमाम सरजमीन में वो बरकत का दरख्त लगा दिया हुआ है। यहूदियों को खत्म कर दिया जाएगा। जो यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे वो बच जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी मार दिए जाएंगे। और ईसाई सारे के सारे फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरान बन जाएंगे। अब उस तैयारी के 3 सबसे पहला तो इनफरादी असूल है कि अल्लाह से दुआ मांगे, खुद मांगे, अपने बच्चों से कहेंगे वो अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से, दज्जाल के शर से महफूज रखना। और तीसरी बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस तो कुरान पढ़ें, दुनियावी इल्म में तरक्की करें ताकि हम दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से मार ना खा सकें। और जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाली है वो टेक्नोलॉजी की जंग है, हम उस टेक्नोलॉजी की जंग को आसानी से जीत सकें। जीत तो हमने जाना है, हमारे नबी ने हमें खुशखबरी दी हुई है कि तुम जीत गए हो, लेकिन हम उसे बेहतरीन तरीके से जीत लें। ये थी हमारी आज की वीडियो दज्जाल विद रेफरेंस टू कुरान। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हजरत सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या दज्जाल को देखा था, क्या दज्जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम रेफरेंस अहादीस के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज।